session. So, before starting with this session, I'll just first start with a brief introduction of Advocate Deepak Bora. So, Advocate Deepak Bora is a seasoned litigation lawyer with 13 plus years of experience, specializing in cyber, criminal, and matrimonial law. He practices before the Supreme Court of India, Delhi High Court, and Delhi District Courts, and has appeared extensively in bail matters across multiple high courts and district courts nationwide. He gained significant recognition for successfully securing bail for 43 out of 45 accused in a high profile Noida case, including bail granted by the Allahabad High Court. Advocate Bora has wide ranging drafting experience, including bail petitions, writ petitions, civil suits, special leave petitions, affidavits, and applications. An alumnus of Hansraj College, Delhi University, and Campus Law Center Faculty of Law, Delhi University. He is currently the founding member of Legal Renaissance with offices in Delhi, NCR, Dehradun, and Mumbai. So that was a brief introduction of Advocate Deepak Bora, sir. And without further ado, we'll start with the session. So you can start with the session. Yeah, thank you, Dhruv. Thank you for the brief introduction. And it's a pleasure. Like today, you have conducted a webinar and invited me to speak along with young kids. So all of them are the law students, right? And even the topic which we have chosen is first generation lawyers, myth, reality, and roadmap. First of all, the first generation lawyer. I personally feel, before I start this topic, I would like to say I'm blessed that today I'm a lawyer. And the first generation lawyer, what is first generation lawyer? What is the definition of first generation? Is first generation lawyer hota kya? The first generation lawyer, for example, your father is not a lawyer, your mother is not a lawyer, your brother is not a lawyer. You yourself had to start from this scratch, and that's what I did. एक अच्छा lawyer अगर बनना है, what is the definition of lawyer? हमें corporate lawyer बनना है. Whether we want to work with the company, we want to work with the firm, or we want to be an independent practitioner, which we call litigation. If you want to be a litigation, तब आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर की डेफिनेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है. मिथ है फर्स्ट जनरेशन लॉयर. टॉपिक इज आल्सो द मिथ, रियलिटी एंड रोड मैप. व्हाट इज द मिथ? लॉयर्स आते हैं, भरे हुए हैं. पूरी कोर्ट में 10,000 लॉयर्स हैं, गाजियाबाद में लॉयर्स हैं, देहरादून में लॉयर्स हैं, भोपाल में लॉयर्स हैं, सागर में लॉयर्स हैं, बिहार में लॉयर्स हैं. लॉयर्स हैं, नो डाउट. ऐसे तो डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं, इंजीनियर्स भी बहुत सारे हैं, कौन से टीचर्स बहुत सारे हैं. तो लॉयर की किस तरीके. Just a second, sorry to interrupt you, sir. आपका voice थोड़ा low आ रहा है. Is it possible for you to bring them now is it fine? Yeah, it's fine. All right, fine. So what I'm saying is basically, so like, do I repeat the same thing? Because it's not possible for me, because that was a rhythm which I had. Anyway, okay. So the first generation lawyer, fine. So I'm saying कि lawyers तो पूरे जगह हैं, हर जगह lawyers भरे हैं, लेकिन हमें अपना stand बनाना है. हमें अपना stand बनाना है. तो how we have to start? What we do is we just script after completion of our 5 years of law and 3 years of law, then we say कि नहीं, client नहीं है हमारे पास. No, that is the biggest mistake which people do. ये सबसे बड़ी कमी है जो हम लोग करते हैं. How I started after completion of my graduation in Hansraj College, when I landed in CLC, Campus Law Center, Faculty of Law, I started doing my internship from the first year. Or first year, what we do is, we start choosing the internship. Let's directly land in the Supreme Court. No. You have to start from the Tehsil. You have to start from the registrar. You have to start from the district court. Then district court में जब आप practice करते हैं, उसके बाद ही आप जाते हैं कहाँ पे? High court में. And then आपका जब 3rd year या 5th year में आता है, then you have to start practice Supreme Court. And तब तक throughout 3 years और 5 years में आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं. द ओनली कमी जो आपके अंदर रहती है, बस वो रहती है कि आप ट्रिप कर रहे होते हैं. व्हाई एम आई नॉट एनरोल्ड एंड व्हाई आई कैन अपीयर बिफोर द कोर्ट. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम व्हिच वी हैव. अदरवाइज आप इतने मजे में हो चुके होते हो. व्हेन आई वाज इन द फाइनल ईयर, मुझे बस ये लग रहा था कि बेसिकली मेरा एनरोलमेंट कब अपीयर हो, क्योंकि वही जो सीनियर्स के साथ हम एसोसिएटेड थे वहां पे, उन्हीं के क्लाइंट्स में वो हमें भेजते थे पास ओवर लेने के लिए. पास ओवर का मतलब होता है कि सीनियर्स आ रहे हैं. और सम टाइम्स क्या होता था कि कितने अच्छे जजेस होते हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि आप आर्गुमेंट कीजिए. एज एन इंटर्न को भी दे देते हैं. सो सबसे पहले आपको जो बनना है वो है आपके अंदर कि आपको वो 3 years और 5 years का वेट नहीं करना है. अब आप बोलते हैं कि कॉलेज भी चल रहा है, मेरे असाइनमेंट्स हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं,
अटेंडेंस है, मैं कैसे इंटर्नशिप्स करूंगा, मैं कैसे टाइम दे पाऊंगा, आपको करना पड़ेगा। इफ यू हैव, अगर आपको एक लिटिगेशन में जाना है तो आपको करना पड़ेगा। एक दिन में जब आपके पास 20 से 30 केसेस होंगे तब आप कैसे हैंडल करोगे? तो आप समझ जाओ ना, अगर आपके पास 80% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, यस 25% अटेंडेंस आपको सिर्फ मिलती है कि 25% का वेवर आपको मिल रहा है, 75 अटेंड करनी है, वो 25% का अपॉर्चुनिटी बनाओ ना। और आप स्टार्टिंग से ही सीनियर को हैंडल करके रखो, सीनियर को पकड़ के रखो। I am telling you, every junior looking for a good senior, but every senior doesn't have a good junior. हर senior भी क्रिप कर रहा है जूनियर के लिए। मुझे नहीं मिल पाते अच्छे जूनियर, लेकिन कई बार मैं इतना ब्लेस्ड होता हूँ कि मुझसे बेटर जूनियर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो 3 साल और 5 साल है ना, इसी में आपको अपना रोड मैप बनाना है, और इसी में बाद में डिसाइड नहीं करना है कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, मुझे क्रिमिनल में जाना है, मुझे मैट्रिमोनियल में जाना है। यही 5 इयर्स है। ये 5 इयर्स समझो आपके ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपके 18 महीने की ट्रेनिंग चल रही है, दैट्स इट। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास होनी चाहिए, व्हाट इज दिस? दैट इज नॉलेज। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कॉलेज नहीं जाना है, कॉलेज में जाना है, नॉलेज यू हैव टू ग्रैब, क्योंकि नॉलेज आगे आगे, सरस्वती आगे आगे चलेगी, लक्ष्मी कब पीछे पीछे आएगी। नॉलेज तो आपके अंदर होना ही है, लेकिन नॉलेज आपके पास बहुत सारी आ गई, हम सबके पास नॉलेज आ गई, नॉलेज को एग्जीक्यूट करना ही नहीं आता है हमें। कैसे? इतना नॉलेज है आपके अंदर, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना। अब कॉन्फिडेंस ऐसे मानो आप बोलते हैं मेरे पास ऑफिस ही नहीं है। मेरे पास भी ऑफिस नहीं था यार, आई केम फ्रॉम देहरादून, आई वाज स्टडीइंग इन द नॉर्थ कैंपस, 8 बाय 8 के कमरे में मैं रह रहा था। बट कैसे मैं क्लाइंट को कहाँ करता, क्लाइंट को कैसे बैठता, मैंने अपना ऑरा उस तरीके से बनाया। आपको अपना ऑरा बनाना पड़ेगा। आप अकेले अगर बैग टांग के चले जाओगे ना, अपना बैग टांग के, क्लाइंट आ रहा है वहीं तो चाय की दुकान में बैठ जाते हैं, बस नहीं हो पाएगा। आपको जाना पड़ेगा इस तरीके से, यू हैव टू गो समवेयर। आपको इस अपने जूनियर, अपने जो आपके फ्रेंड्स है ना, मैं लेट्स से मानो आपके जो फ्रेंड्स हैं, इस तरीके से अप्रोचेबल मत बनो, थोड़ा सा अपना ऑरा इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तब इस मोमेंट में आपका पहला क्लाइंट भी आपके पास आता है ना, कोई आपसे बात करने भी आता है, डायरेक्टली डोंट गो देयर। अपने दोस्त को ही बोलो, जस्ट गो लाइक ही इज माय जूनियर, ही इज माय एसोसिएट, सर इज ऑक्यूपाइड। आपको दिखाना पड़ेगा अपना ऑरा, यहाँ पे है ऐसे, सोसाइटी इस तरीके से है, आप कितने नॉलेजेबल हो उसको आपका ऑफिस देखना है, तो नॉलेज आपकी बाद में देखेगा। सबसे पहले क्या, जिस जैसा क्लाइंट होगा उसे लॉयल करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने उसका केस आपको मिल गया, देन आपको तब पता चलेगा जब आपका केस लड़ोगे, उसका केस जीतोगे, और आपको जीतना ही है। कॉन्फिडेंस के बाद आपको जीतना ही है, आप हार नहीं सकते फर्स्ट जनरेशन लॉयर ना, एनी वे यू हैव टू विन। और मेक श्योर कि इसके लिए अगर आपको 24/7 भी वर्क करना पड़ रहा है ना अपने केस को जीतने के लिए, तो आप करो। I tell you, Dhruv introduced you people like with the 46 cases. उस टाइम पे मेरी प्रैक्टिस कितने साल हुए थे? It was just 6 years. 2019 का केस है। I lost my 4 kg of weight. But that 4 kg का मैंने वेट किया था, क्योंकि मैं अपने आप को मैंने क्या किया था उस केस में आइडेंटिफाई कर दिया था, जो आप लोगों को नहीं करना है। कॉन्फिडेंस रहेगा, नॉलेज रहेगी, एग्जीक्यूशन रहेगा, केसेस भी आएंगे, बट मेक श्योर जब आप केस लड़ोगे ना, अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफाई इन्वॉल्व? केस को बहुत मन से लड़ना है, यू हैव टू फाइट विद लॉट्स ऑफ शिद्दत, पूरे की शिद्दत से लड़ना है, केस को लड़ना है। लेकिन आइडेंटिफाई का मतलब होता है आप अपने खुद के ऑपरेशन करने वाले हैं, अपने बच्चे का, डॉक्टर बच्चे का ऑपरेशन करने वाला है। उसमें आपको क्या होता है कि आपको रात को डर लग जाता है कि मैं हार जाऊंगा, क्या होगा, इनको कैसे होगा, कैसे नहीं। बहुत स्मार्ट रहना है, चलता है, कोई नहीं होगा कि केस नहीं आएगा। और जिस मोमेंट में आप आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, अपने क्लाइंट को अपने सामने रखना है। मैं उन 46 लोगों का जब मैंने केस लड़ा, उसमें से 23 गर्ल्स थी जिनको यही नहीं पता था कि वो जिस कॉल सेंटर में नौकरी करती है कि बेसिकली वो क्या है, वो फेक कॉल सेंटर है। मेरे लिए बहुत बड़ा केस था 46 लोगों का। यहाँ एक लोगों की बेल करा दे वही गरीमत है। 46 में से 23 लोग गरीब लोग, बिल्कुल ही जिसे पता ही नहीं कहाँ से आ रखे, 18 ईयर्स की ओल्ड के, 18 साल हुए, 12 किया, एग्जाम्स के रिजल्ट भी नहीं आए हुए, और डायरेक्टली कहाँ करेंगे, नोएडा पहुंच गए। कहाँ कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में नौकरी कर। और वाह, आईडी कार्ड भी बन गए, सब बन गए, बैठे ही हैं। 1 घंटे बाद रेड लगी साइबर सेल की, सीधे लेके कर दिए कहाँ पे, जेल में बंद कर, कासना जेल नोएडा में बंद कर दिया। और उस मोमेंट में मेरे पे 2 ऑप्शन थे उस टाइम पे, मैं क्या चाहता, कितना ना बिल्कुल उस तरीके का इतना एक्सपीरियंस हो रहा। मेरे पास क्या था, 6 साल का था एक्सपीरियंस। 6 साल में मैंने कभी बेले कराई तो 1 की कराई, 2 की कराई, 3 की कराई, बट कैसे मैंने करवाता। 2 ऑप्शंस थे, सीनियर एंगेज कर देता नोएडा का ही,
या सीनियर इंगेज करके लाता दिल्ली से ही, या ऑप्शन था मैं ही निकालूंगा, मैं ही निकालूंगा। एंड आई डिड इट, मैंने निकाला। 23 दिन लगे मुझे, बट मैंने किया। प्रोसीजर हमारा इस तरीके से था, मैंने प्रोसीजर को फॉलो किया। बट 23 गर्ल्स और बाकी जो 20 बॉयज थे उनको निकाला। 3 जो मेन अक्यूज थे उनको मैंने बाद में अलावा, लेकिन हाँ 6 साल की ही प्रैक्टिस में मैं फेमस हो गया था। वहाँ पे ये था कि अगर कोई निकाल सकता है तो दीपक बोरा निकाल सकता है। तो वही था। क्या थी वो चीज? वो अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप लिटिगेशन में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो ना, अपॉर्चुनिस्ट बनो। ये है, ये दिया हुआ ये ना सागर है पूरा संसार में ना, ये जो है पूरा नॉलेज है। अब आपको किस तरीके से ग्रैब करना है ये देखो। जिस मोमेंट में आपको अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब कर लो। मैंने करी उसी मोमेंट। एंड हाउ आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, किस तरीके से मुझे नहीं पता था। एक रिटेनरशिप मिली हमें। और मुझे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर थे एक मेरे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, आई वाज इन देहरादून, मुझे बुलाया कि दीपक एक कंपनी मिल रही है, वो कंपनी 50,000 रुपये महीना देगी। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंपनी दिलाई है, 10,000 वो रखेंगे, 20 मैं रखूंगा, 20 तुम्हें दे दूंगा। 20,000 रुपीज, माय गॉड। मैंने बोला 20,000 बहुत ज्यादा हो गए, नॉर्थ कैंपस में कमरे 3,000 रुपये का ऑर्डर, मतलब कोई इशू नहीं है, लिटिगेशन नहीं है। बाकी ऐसा नहीं 50,000 रुपये कॉर्पोरेट में मिल सकती थी मुझे, लेकिन सुनने की आदत नहीं। और बॉस है अपने ही है, इस तरीके का लिटिगेशन का एटीट्यूड रहता है। ठीक, मैं वहां पे गया और साइबर में 2000 एक साल 13 में लाइक व्हेन आई एनरोल, उसके बाद 14 के दिसंबर में ही कॉल में आउट। मैं गया, आई वाज देयर। जैसे मैं गया, एक महीना, हाँ 18,000 रुपीज आई, फिर 20,000 नहीं दिए, 2,000 उन्होंने बाद में दिए, फाइन। सेकंड महीने फिर 2, तीसरे महीने में लग गई वहां रेड। अब पता चला कि अपोलो वैल्यू कार्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, बेसिकली वो तो अलग ही कहानी चल रही थी वहां पे लग गई रेड। मैं वहां पे गया, वहां पे उन्होंने नहीं, ये तो आप तो हमसे एग्रीमेंट्स बनवाते थे, ये सब चीजें कराते थे, आपका तो मोडस ऑपरेंडी कुछ और है। बोला हाँ सर, ये सब चीजें हैं। एनीवे, केस रजिस्टर्ड हुआ। आई इन्फॉर्म माय सीनियर, मैंने अपने सीनियर को बताया कि आप यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है। सीनियर ने बोला दीपक ये हम नहीं कर सकते यहाँ पे, बेसिकली क्योंकि हम सिविल देखते हैं अच्छे से, ये तो क्या है। मैंने ठीक है सर, ठीक हो सकता है। अब मेरे पे फिर से वही लगा, मैंने बोला क्या करूं। मैंने बोला हाँ, हम आपकी रिटेनरशिप नहीं ले सकते, बट यदि, ये मैंने इंडिपेंडेंट बोला, मैंने बोला सर मैं देख लूंगा, और आप बस मुझे गाइड कर दीजिए। आप बिलीव नहीं करोगे, उस मोमेंट में जब मैंने उनका केस लड़ा, मैंने बोला मैं करूंगा, रिटेनरशिप नहीं लेंगे लेकिन मैं आपके केसेस लड़ूंगा। 2 साल का प्रैक्टिस, उन्होंने मुझे सीधे मुंबई भेज दिया। सम गाय लाइक आई डोंट नो इन मुंबई, ही गॉट अरेस्टेड, ही आस्क्ड मी टू विजिट देयर, आई वेंट देयर, सीनियर एंगेज किया, लेकिन इस कॉन्फिडेंस से गया था कि बेसिकली मैं ही जा रहा हूँ, बताया नहीं मैंने कि सीनियर एंगेज करके ये स्मार्टनेस करनी है। सीनियर एंगेज कर रहे हो और पता है कि होने वाला है बेल या फिर कोई भी रिलीफ मिलने वाला है, डोंट टेल योर क्लाइंट कि सीनियर करके आपने किया हुआ है। सबसे चीज है, स्मार्ट भी बनना है, लेकिन अब इसकी आदत नहीं लगनी है। अब लिटिगेशन में ये आ गया कि सीनियर कर सकते हैं, सीनियर से बेल हो जाएगी, सीनियर से रिलीफ मिल जाएगा, सीनियर से सिविल केसेस करो, मैट्रिमोनियल करो, कुछ भी करो, सीनियर आर्ग्यूज वेल, सीनियर की फेस वैल्यू है, सब है। लेकिन क्या जीवन भर तक या 50-60 साल की उम्र तक सीनियर करोगे? नहीं। लेकिन आदत मर जाती है क्योंकि पैसा इजीली आ रहा होता है, टेंशन नहीं। मतलब क्या बन गए आप एक तरह से, आपको लाइसेंस बस अभी करते हो, तो क्लाइंट्स ला रहे हो, नहीं, यही मैं करने लग गया। उसी वक्त व्हेन आई गॉट द कॉल गुरदासपुर से, अरे दीपक बोरा इज द बेस्टेस्ट लॉयर, उसको गुरदास अपॉर्चुनिस्ट तो बन गया, स्मार्ट भी हो गया, सेंस ऑफ ह्यूमर भी, लीगल एक्यूमेंट भी, सब चीजें हो गया। लेकिन हमेशा लगता था यार कि अगर नहीं रिलीफ मिला तो मेरा इमेज खराब हो जाएगा ना। वही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जीतना तो है ही, लेकिन वहां पे क्या है, मैं कब बोलूंगा, क्लाइंट के सामने बोल रहा हूँ, पैसा भी आ रहा है, सब आ रहा है, स्मार्टनेस है, हर चीज है, लेकिन मैं कब बोलूंगा। सेम थिंग हैपन कब, 2 बार हुई मेरे साथ। गुरदासपुर में दिल्ली का एक क्लाइंट था मेरा, उसकी कोई फ्रेंड थी और उनपे एंटीसिपेटरी बेल फाइल की और मैं चला गया। कहाँ गया? गुरदासपुर। सीधा जम्मू बस जा रही थी, जम्मू ट्रेन जा रही थी, सॉरी, मैं गुरदासपुर में हो गया, पठानकोट से पहले दिल्ली से मैं गया। एंड उसी मोमेंट में मैंने सीनियर कहाँ से इंगेज किया? चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, शक्ति कौशिक। चांस की बात है, उस दिन उसकी गाड़ी हो गई खराब। जैसे उसकी गाड़ी खराब हुई, उसने मुझे कॉल किया,
दीपक मैं नहीं आ सकता, तुम्हें आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा ना, मेरे बस का नहीं आर्ग्यूमेंट करा। 5 क्लाइंट है, 5 की एंटीसिपेटरी बेल है, फीस ले चुके हैं, मैं डिसमिस हो जाएगी, आप आ जाओ। बोला मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है, बिल्कुल यहाँ पे समय लगेगा। तो बोला रुक जाओ, परेशान मत हो दीपक, मैं किसी को भेजता हूँ। उसने गुरदासपुर से एक बंदे को भेज दिया, मुझसे भी उम्र में छोटा, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, मैं बोल दूंगा नहीं। अब वहां पे क्या हो गया, वहां पे ईगो पे ले लिया, ये बोल सकता तो मैं क्यों नहीं बोल सकता, लेकिन लगा। और तो मैंने बोला चलो डिस्कस करते हैं, एक दो सेक्शंस थे, मैंने इसको वहां पे मुझे लगा कि भैया यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, वो बाद में रियलाइज हुई। मैंने बोला तू रहने दे, मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ। जब उससे डिस्कशन मैंने किया, मैंने आर्ग्यूमेंट करा, पांचों के पांचों को बेल मिली। उस मोमेंट में उन्होंने जो मुझे दिया था फीस, सन 2017 की बात बता रहा हूँ मैं, कैसी है 17-18 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो 20 में 19 में कोविड आ गया था, 20-21 में। 2025 में जब उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया, अभी वो गुड़गांव में होने थी, वो फीस ही 5 गुना ज्यादा देने को तैयार। मेन क्या है कि मैंने उस मोमेंट को जो अपॉर्चुनिटी बनाया ना, जो आर्ग्यूमेंट करा, मेरा कॉन्फिडेंस वहीं से खुला। और यही चीज मैंने अभी रिसेंटली बताई थी जब मैं फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में अपेयर हो रहा था। सिर्फ ट्रांसफर पिटीशन कुछ नहीं है। आपको क्या बोलना है कि बेसिकली कि ट्रांसफर पिटीशन में क्या है, उत्तराखंड से ट्रांसफर करना है यूपी में, नागालैंड से ट्रांसफर करना है हमें कहाँ पे, झारखंड में, केरला से हमें ट्रांसफर करना है कहाँ पे, हिमाचल में। तो ये उसके लिए सीनियर ने बोलते हैं कि दीपक तुम पास ओवर ले लेना, पास ओवर। और उसी टाइम में जज ने मुझे बोला, ये रियलिटी है, जस्टिस धर्माधिकारी थे, उन्हें मुझे बोला इधर का यंग बच्चा सा है, पास ओवर ले रहा है। तो लगा सिंपल सा केस है, इतना तो कर सकता है। बोला यू आर्ग्यू, सर आई कांट आर्ग्यू ब्रो, व्हाई हैव यू नॉट रेड द फाइल। मतलब बेसिकली गुस्से में, फाइल पढ़ के नहीं आए हो, बस पास ओवर लेने आए हो। मैंने आई हैव रेड द फाइल, देन यू ओनली आर्ग्यू। आई आर्ग्यूड, he allowed the stay, मिलना ही था वो तो, लेकिन वो करते, लेकिन कॉन्फिडेंस वहां से खुला। अब उसके बाद आज की डेट में मैं एसएलपी फाइल करूं, मैं बेल फाइल करूं, मैं कुछ भी फाइल करूं, आई कैन इजीली आर्ग्यू, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। हियर द जजेस गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। वेयर यू गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिल कहाँ रही है? अगर ये यूज नहीं करोगे ना, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, फिर धक्के खाना, फिर लिंक्डइन में डालते रहना, बेसिकली सीनियर रगाड़ते हैं और पैसे नहीं देते। अरे क्यों देगा कोई तुम्हें पैसा? क्यों देगा पैसा? नहीं है उसको जरूरत तुम्हारी, तुम्हें उसकी जरूरत है। और जिस दिन उसको तुम्हारी जरूरत हो गई ना, जिस दिन उसको हैबिट पड़ गई तुम्हारी, मैंने कहा ना कि एवरी सीनियर लुक्स फॉर अ गुड जूनियर, ये पता ही नहीं है। 5,000 रुपए के स्टाइपेंड में क्या कर लोगे? 25 साल की उम्र में क्या 25,000 रुपए में चल जाएगा? नहीं। और स्टार्टिंग में याद रखना कि बेसिकली इस तरीके से बनना है वो 5 सालों में ना, कोई भी सीनियर आपको जाने नहीं देगा, क्योंकि आपको भी तो कभी ना कभी सीनियर बनना है। तो ये चीज याद रखो, इस लेवल का अपना ऑरा बनाओ आज से ही। मानो इफ यू ऑल आर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट, तो आज से लॉयर बन चुके हो यार। हर मोमेंट में क्लाइंट है, हर जगह क्लाइंट है। अब आप जानते हो मैं दिल्ली हाईकोर्ट चले जाता हूँ, अरे दिल्ली हाईकोर्ट में जाके क्या करोगे? अगर छुट्टियां पड़ गई जून के महीने में, जाके देहरादून की कोर्ट में जाके रजिस्ट्री में बैठो ना, कितने मैटर लगे होंगे यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट में? 10 मैटर एक सीनियर के पास, वहां जाके देखो 40 रजिस्ट्रियां हो रही है, एक आदमी 5,000 रुपए रजिस्ट्री के ले रहा है। कितने हो गए 40 दिन के? काउंट कर लो। क्या देखना है? पर्सनैलिटी देखनी है, सूट देखना है, क्या देखना है? नॉलेज हर जगह से आएगी, हर जगह से नॉलेज आएगी। अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके, अगर वो उनके पास चैम्बर वहां पे अलॉट नहीं हुए ना, जो बाहर बैठा है वो भी इतना ज्ञान लेके बैठा हुआ है, उससे नॉलेज लो। उससे नॉलेज को एग्जीक्यूशन की जो पावर है वो आपके टिप्स में होगी, उसको बाद में एग्जीक्यूट करो। तो नॉलेज हर जगह से लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ, बेसिकली आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ना अपनी पर्सनैलिटी पे तो वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट जनरेशन करना पड़ेगा। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप नॉर्मल तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप बैग लेके जा रहे हो ना, आपको अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि क्लाइंट जिस मोमेंट में आपको देखे ना, जो कॉन्फिडेंस उसको आपके अंदर दिखे, उसको लगे ही इज इनटू गुड हैंड्स, शी इज इनटू गुड हैंड्स। अब मेरा केस सेफ है। सबसे पहला स्टेज ही ये है कि क्लाइंट आएगा कैसे। तो क्लाइंट आ गया, अब क्लाइंट आपको फीस देगा कैसे? देगा पहले दिन ही अगर उससे बात करोगे ना, मैंने XYZ अमाउंट कर दिया है आपने, नहीं, कैसे देगा? वो तो सीन नहीं, आपको देगा यार। लोगों के भाई इतना पैसा आपको देगा, लेकिन उसको विश्वास तो होना चाहिए आपके ऊपर। और पहली चीज, आपकी इमेज बहुत मैटर करती है, बहुत इमेज मैटर करती है। गंदगी मत मचाना स्टार्टिंग के करियर में। कुछ लोगों ने अगर देख लिया कि इसका दिमाग पैसे पैसा 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 ही करता रहेगा, तो इतना याद रखना
बाहर जो भेड़िए बैठे हुए हैं वो आपको पकड़ लेंगे, आपकी इस कमी को, आपको स्टार्टिंग में इतना देंगे लेकिन उससे ऊपर आप नहीं हो पाओगे, रोक देगा वो वहाँ पे आपको। ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है ये। पैसा इतना ज्यादा दे दिया था मुझे, लेकिन इस तरीके से कर रहा था एज इफ आई हैव टू डांस अकॉर्डिंग टू हिज ट्यून। मैं चालाक था, दिमाग था, स्मार्ट था, मैंने कर लिया, मैंने छोड़ दिया, पैसे नहीं दिए क्योंकि काम करके दिया, लेकिन बोल दिया करूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा लेकिन काम करके दूंगा। आई डिड इट, मैंने करके दिया। लेकिन आप याद रखना, किसी के भी क्लाइंट के अकॉर्डिंग मत चलना, और कभी भी होगा तो उसको एग्जांपल दे देना। किसी भी एक एक्टर का नाम नहीं बताऊंगा, रूल कर लेना, व्हेन हिज लॉयर्स वर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू हिज ड्यून, कभी उसे रिलीफ नहीं मिल पाया। व्हेन he was acting according to tune of his lawyer, उसको रिलीफ मिला। तो आपको नहीं करना है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, नहीं करना है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, नहीं करना है क्लाइंट को आपके अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं करना फर्स्ट हाय 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 पैसे नहीं देगा, हाय नहीं देगा, नहीं देगा, उसको जरूरत है, फंस चुका है वो। और याद रखना, फर्स्ट जनरेशन लॉयर को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, सीधा आके लोग आपका एडवांटेज उठाते हैं, चीजें करते हैं ना। अरे आप मिलो तो सही, दे देंगे आपको, नहीं देंगे आपको फर्स्ट डे में ही अपनी कॉन्फ्रेंस फीस रखनी पड़ेगी। 1000 रुपए रखो या 10,000 रखो या 15,000 रुपए रखो, और स्टार्टिंग से ही मेरी मानो, मैं आपको कोट नहीं कर सकता, मैंने स्टार्टिंग से ही मेरे दिमाग में था, मुझे बोला गया था कैंपस लॉ सेंटर में कि आप जिस मोमेंट में सारे टॉप के लॉयर्स कहाँ जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, पेरिस जाते हैं, और जून के महीने बाहर होते हैं। मैं गया यार 6 महीने में, एक ने फिर मेरी रील में डाल रखा था कि नहीं कि कैसे हो सकता है, मैं भेज सकता हूँ, टिकट आज भी रखी है, सन 2015 21 अप्रैल 19 तारीख को मैं जा चुका था, मेरी पेरिस की टिकट थी। उसके बाद पेरिस में मैं 2 नाइट था, एक दिन मैं ज़ुरिक में था, एक दिन मैं इंटरलाकन में था, एक दिन मैं ज़ंगफ्रोज़ॉक में था, एक दिन मैं माउंट एटलस में। शाहरुख खान का मैं फैन था, आई वाज इन हंसराज कॉलेज, देन सीएलसी, देन मैं वहां पे था, डीडीएलजे की शूटिंग कर रहा था। किया ना मैंने, मांगे उनसे पैसे, दिए उन्होंने, क्योंकि मेरे अंदर क्या थी, नॉलेज थी, स्किल्स थी, बोलने की थी, बोल दिया, आर्ग्यूमेंट नहीं करा, आर्ग्यूमेंट के लिए सीनियर किया था। बात की मैंने एपिसोड बताया, जब मेरा कॉन्फिडेंस किसने खोला, एक बार एक जज ने खोला, और एक बार किसने खोला, गुरदासपुर में उस जूनियर लॉयर ने कर दिया जिसको नॉलेज नहीं थी। अगर उसको नॉलेज होती तो शायद वही आर्ग्यूमेंट करता। तो यार हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फीस देंगे, इतना आएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। अगर ये सोच लिया ना कि सुबह 10 बजे उठूंगा, 6 बजे जाऊंगा, नहीं जाओगे, नहीं कर पाओगे, 50,000 लाख में नहीं पड़ जाओगे। बनना है, टॉप में जाना है, करना ही पड़ेगा, नींद सोना नहीं है यार, नहीं सोना है हमें। और सोना है जिस टाइम पे, आज फर्स्ट जनरेशन लॉयर की बता रहा हूँ मैं, मुझे बाकी का नहीं पता, जिनका ऑलरेडी बैंक बैलेंस छोड़ा हुआ है, सब कुछ करा हुआ है, मुझे नहीं पता, मेहनत तो उनको भी करनी पड़ेगी, ब्रांड तो उनको भी बनना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे आपके, अरे मेरी जरूरत क्या है, गाइडेंस चाहिए, मैं दे सकता हूँ, पैसा नहीं दे पाएगा कोई, क्योंकि पैसा निकालना सबसे बड़ी आर्ट है, और जिसने ये सीख लिया ना, वही फर्स्ट जनरेशन लॉयर टॉप का लॉयर बनता है। मैं अपने आप को कोई टॉप का लॉयर नहीं बोलता हूँ, बट हाँ मैं इतना हूँ कि बेसिकली कि नहीं थे, आई वांटेड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, मुझे सैलरी चाहिए थी, मुझे लेफ्ट, आज की डेट में अगर मैं होता 13 साल में, तो आज मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुका होता है, सीओ होता। लेकिन ना, जो प्रॉस्पेरिटी जो मुझे मिल पाई है लिटिगेशन से, वो नहीं मिल। आपको क्या करना है, आपको वर्क करना है, आपको काम करना है। फोन जो उठाते नहीं, अगर आप में से कोई ऐसे है ना जो फोन नहीं उठाते हैं, फोन एक अपॉर्चुनिटी है, मिस कर रहे हो, आप नहीं कर रहे। मेरी तबीयत खराब हो गई है ना, ऑप्शन नहीं है ना यार आपके पास, तबीयत खराब है तो काम करो ना, वर्क करो। 80% अटेंडेंस है, क्राइटेरिया अटेंडेंस का है, 20%, क्या है ये एक्सक्यूज है, 80% 80%। अभी इसी मोमेंट में मैं आपको बोल दूं 80,000 रुपए मिलेंगे, 20% में आ जाओ रोज, नहीं आओगे। आपकी आप अभी आप पुणे में पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी फी जो है ना, आने जाने की फ्लाइट के खर्चे वो हम देते हैं। अब कैसे आप देखना 20% कैसे निकल जाएगा, मत करो ऐसे। फोन नहीं उठेगा, अगर आपका फोन अपॉर्चुनिटी है, हर मोमेंट में क्लाइंट को देखो, जिस मोमेंट में इंसान आपसे बात करेगा, जिस टाइम आप ब्लैक कोट पहनोगे ना, मेट्रो में बैठोगे आप, और आप उस टाइम पे बताओगे कि बेसिकली आप एक लॉ स्टूडेंट हो, यहाँ हो, उसी टाइम पे उसको क्लाइंट बना लो। ये दिए ना हमें, जवान दिए रखी है, इसकी स्किल्स को समझो, इसको यूज करो। और अगर ये नहीं कर पाओगे तो लिटिगेशन मत करो। मैं नहीं बोलता कि सब करो, हर किसी के अंदर वो आर्ट नहीं होती, लेकिन अगर जो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये आर्ट आपके अंदर है, नॉलेज आपके अंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर है,
वो ऑरा आपने डेवलप कर दिया है अगर आपने, और आप अपने आप को ब्रांड बना चुके हैं। अच्छा, ब्रांड कैसे बनाओगे? अब आपको ब्रांड में वही दिखते होंगे जो आपने सुनते आ रहे हो, ये ब्रांड है, वो ब्रांड है, ब्रांड है। अरे नहीं है ब्रांड, उन तक क्या सब पहुंच जाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश के भदोही डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड कोई और होगा, वाराणसी का ब्रांड कोई और होगा, देहरादून का ब्रांड कोई और होगा, मोरेना का कोई और होगा, इंदौर का कोई और होगा। सिर्फ यही अगर सुप्रीम कोर्ट में आप आ रहे हो फर्स्ट ईयर में, वहां पे आके चीफ जस्टिस की कोर्ट के बाहर फोटो खिंचा रहे हो, खुश, खत्म, सीख के क्या गए? सीखना है तो सर्टिफाइड कॉपी फाइल करना सीखो। सीखना है तो उस क्लर्क्स के साथ जाके सीखो जिससे पहले वो सिखाएगा। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिविल के पास देखो, और यहाँ बहुत भीड़ है, वहां तो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अरे तो वहां मिल भी गई तो कौन सा तुम्हें सिखाएंगे? जिसके पास इंटर्न्स नहीं है उसके पास जाओ ना, कम से कम तुम्हें टाइम तो देगा। फोटो क्या खिंचा के, आई हैव डन माय इंटर्नशिप टुडे, आई एम सो ग्रेटफुल, फलाना XYZ। अरे क्या क्या सीख लिया? पूछूं मैं कुछ? सर रिसर्च। अरे तो तुम्हें कुछ देंगे तो रिसर्च ही तो देंगे, रिसर्च करो, देखो तो सही वो रिसर्च कौन से केस में काम आया। 1 मंथ के बाद सब भाग गए अपने अपने कॉलेज, नहीं हो पाए। 5 साल के बाद अंधेरा दिखेगा, अंधेरा ही दिखता है। और अगर 20, 25, 50 हजार लाख रुपए में सेटिस्फाइड हो तो कोई नौकरी। और अगर एक भी चीज करने के लिए, मेटेरियलिस्टिक चीज करने के लिए सोचना नहीं है, तो अभी रिग्रेस वर्क है। रिग्रेस वर्क करो, रिलीजियसली करो, डेडिकेशन से करो, डिवोशन से करो, डिटरमिन्ड होके करो। हर मोमेंट में सीनियर केस ले लो, केसेस डिपेंड कर दो सीनियर को अपने ऊपर, हैंडीकैप कर दो सीनियर को अपने ऊपर। इतने मुझे कर रखा है, मुझे कर रखा है। आई टेल यू, मैं आपको एक इंटर्न का ही बताता हूँ। एक देयर इज अ बॉय कॉल्ड साई दर्शन पात्रा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। इसी 25 तारीख को उसको 2 साल मेरे साथ हो गए, 25 दिसंबर। फर्स्ट टाइम मेरे पास आया वो 25 दिसंबर 2023 को मेरे पास आया। मैं क्रिसमस पार्टी चल रही थी मेरी सोसाइटी में, आइसक्रीम एनसीआर। मैंने उसको बुला दिया, मैंने ऐसे ही बुलाया था उसको, मैंने आ जा, मैंने फन करेंगे इस तरीके से। आया, लाइक शरीफ सा लड़का, आते सीधे मेरे पैर छू दिए। मतलब भाई पैर मत छू मेरे, नॉर्मल है, मेरा हाथ मिला, ठीक है। इंग्लिश नॉर्मल, हिंदी टूटी फूटी, तो थोड़ी सी एक्सेंट आ रही थी। बट आज की डेट में, इस मोमेंट में, टाइम कितना हो रहा है अभी? 3:33 में नोएडा के सेक्टर 62 में बैठा हुआ है उस क्लाइंट के साथ, और वहां पे उनका जुडिशियल सेपरेशन बना रहा है। उसको मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट में बोलोगे तो नंबर भी दे दूंगा उसको, लेकिन रात के 3 बजे तक जब वो काम करता था ना मेरे साथ, मैं, और मुझसे पहले कर चुका था 15 इंटर्नशिप्स। आज मेरे पास 24 इंटर्न्स हैं, ठीक है। उस टाइम पे जब मैं आ रहा था 5 इंटर्न्स मिला होते थे। ये आया था मेरे पास, लेकिन 3 बजे ना, जब रात के 3 बज जाते थे, एक हम एनजीटी में केस फाइल कर रहे थे, बहुत प्रेशर था मेरे पे काम का, इंटरनल प्रेशर था। क्लाइंट कभी आपको प्रेशर नहीं देंगे, क्लाइंट के लिए अप्रोचेबल ही नहीं हूं मैं, वो मुझसे बात नहीं कर सकता, करूंगा तो सर में चढ़ जाएगा, फर्स्ट जनरेशन लॉयर को बता रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने इंटरनल प्रेशर खुद ही ले रखा है ना, क्योंकि मैं खुद ही का बॉस हूँ, तो मैं अपने आप को डायरेक्शन करूंगा, काम कर, तुझे देना है, पैसे लिए, काम करना है, और जीतना है, जीतना है इसलिए क्योंकि दूसरा भी चाहिए। साईं दर्शन पात्रा रात के 3 बजे आंखें ऐसी होके यूं हो जाती है उसकी, तब जाके मैं बोला सो के चले गया। आज वो साईं दर्शन पात्रा आज वो सारा केस लड़ सकता है, हाईकोर्ट का भी लड़ सकता है, उड़ीसा में भी केसेस लड़ रहा है, एनजीटी में भी केसेस लड़ रहा है, क्रिमिनल केसेस भी लड़ रहा है, गाजियाबाद का ट्रायल भी देख रहा है, सब चीजें कर रहा है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। कितने हैं? मैं मानता हूँ यार कि इट्स वेरी इजी टू से कि ऐसा होगा, मैं कि कुछ लोग ऐसा लगता हो कि पीछे से बैकग्राउंड, फर्स्ट जनरेशन लॉयर तो है, लेकिन हो सकता है कि फादर का बैकग्राउंड मेरा बहुत साउंड हो, या चीजें हो इस तरीके से हो, वो तो वो लग रहा होगा, ठीक है। और कुछ लोग, मैं मानता हूँ कुछ लोगों पे ऐसा होगा कि जिन्हें फैमिली उन पे होगी, आश्रित होगी फैमिली, उन्हें जल्द से जल्द करना होगा। फैमिली बोलना इजी है कि फैमिली को भी सपोर्ट करना होगा, बहुत सारे सबके अपने भी क्राइटेरिया होंगे। लेकिन आप अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपने कर दिया, तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये 5 साल उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ। आप 5 साल के अंदर अंदर कमाने लग जाओगे यार। बेल बॉन्ड जब भरा जाता था ना, बेल बॉन्ड जब भरा जाता था, बेल बॉन्ड के टाइम पे भी इंसान ना 20 रुपए की, अब आप मेरा एग्जाम्पल जानोगे। आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप इन साकेत, staying in the north campus.
20 लीटर की केन की बॉटल होती थी, 20 लीटर की, मैं वहां से 2-2 लीटर की भर के लाके भर लेता था। तो यार हमने भी ऐसे ही देखा हुआ है, लेकिन 2 ऑप्शंस थे। और उस टाइम पे यार ये जो मुझे एक इंसिग्निया नाम की कंपनी थी, जहाँ से ऑफर मिला था 40,000 रुपए महीने का, मैं वो कर लेता या फिर मैं ये कर लेता। तो मैंने ये पाथ को चूज किया। तो मैं आप सबको बस जो मेन मेरी बात है वो यही है कि यदि आपको लिटिगेशन में जाना है और आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो आपको सबसे पहले अपने आप को आज से ही समझ लेना है कि यू पीपल हैव बिकम अ ब्रांड। आप सारे के सारे आज से ही लॉयर्स हैं और क्लाइंट आज से ही लाओ। और ये मत सोचो कि सर मुझे मैं बोल नहीं पाता, मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ, मैं आई कैन स्पीक। नो, फाइन। For example, like if I have studied from Dehradun, I have a very good communication skill. This is the main reason that why I was speaking in Hindi right now, because I know there are many people there. When I was making a reels on Instagram, there were many students said, please speak in Hindi. क्या करूं मैं, अंग्रेजी बोलने वाले के ज्यादा कमा रहे हैं वहां से। देहरादून में एक की जो डायरी है ना, उसमें भाई आई स्पीक इन देहरादून, मैं जाता रहता हूँ। गाजियाबाद में चलो भीड़ लगी हुई है, अभी मध्य प्रदेश में कहते भीड़ लगी हुई, इतना पैसा है वहां पे। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में डू यू स्पीक इन इंग्लिश? नो। नैनीताल में, राजस्थान में, जोधपुर बेंच में कहाँ पे होता है ये? नहीं। अगर ये आपको लग रहा है तो ये रॉन्ग है ना। क्लाइंट को हमारी अंग्रेजी नहीं चाहिए, क्लाइंट को रिलीफ चाहिए, क्लाइंट को नॉलेज चाहिए। ये आपको मैं बताता हूँ, बिहार से नवादा एक जगह है, वहां से लाइक पीपल वर हियर, सुप्रीम कोर्ट में एक लॉन है, लॉन में वो बैठ गए एंड दे गॉट द मनी। किसमें किस तरीके से लेके आ गए थे? पोर्टली में। उन्हें नहीं चाहिए था यार कि हाउ आई स्पीक वेल, या बस यस। आपकी ग्रामर पे आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करें, रिक्वायरमेंट है लिटिगेशन में हमें। बहुत सरल लैंग्वेज इंग्लिश। उनको फ्रेंड्स बनाओ ना, जब इंटर्नशिप करते हो मेरे साथ में होते हैं, उसमें तो कुछ होते हैं जो हिंदी स्पीकिंग होते हैं, कुछ होते हैं जो कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल्स होती है, कॉन्वेंट एजुकेटेड बॉयज होते हैं, सेंट जोसेफ के हैं, डून के हैं, वेलम्स के हैं, मेयो के हैं, शेउट के हैं। मैं तो केंद्रीय विद्यालय से हूँ। बट आपको ड्राफ्टिंग पे वर्क करना पड़ेगा। और ड्राफ्टिंग कोई ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ड्राफ्टिंग 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 कोई नहीं सिखाएगा। ड्राफ्ट अरे क्या करेगा सीनियर केस छोड़ के, मैं केस छोड़ के आपको ऐसे बिठाने लग जाऊं जैसे अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं मैं? नो। आप उसमें अपॉर्चुनिस्ट नहीं बनते। आप देखो ना कि किसको आती है, उससे पकड़ लो ना उसी मोमेंट में। आई हैव अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप मेरा, उसमें से मैं मैसेज डाल देता हूँ, हु विश टू वर्क। आधे सो ही रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि व्हाट्सएप कब आएगा। उसमें से कितने होते हैं जो बिल्कुल ही मैसेज कर लेते हैं, सर हमें दीजिए, ले लिया ले लिया। अरे आप पूछो ना, यू टेक द फॉर्मेट्स लो, उसमें से फॉर्मेट्स लो, देखो ना आए तो फिर पूछो। अरे 5 साल यही तो करना है, 5 साल के बाद नहीं सिखाएगा कोई आपको। और इतने बेटर है दोस्तों, और कॉन्वेंट एजुकेटेड है, मैं बता रहा हूँ आपको। सेंट जोसेफ का एक सॉरी ब्राइटलैंड, सॉरी एसजे देहरादून का मेरा एक इंटर्न था, नासिर मुल्की से था, वो आया हुआ था अभी। आप बिलीव नहीं करोगे, उसकी ड्राफ्टिंग देख लेना आप, और नवोदय विद्यालय के बच्चे की ड्राफ्टिंग देख लेना। फ्लावरी वर्ड्स नहीं करना है, किलर वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, लीगल एक्यूमेंट यूज करना है। जज को नहीं आ रहा है तुम्हारा पसंद, व्हाट्सएप के टेक्स्ट नहीं हो रहे हैं। पर एक चीज याद रखना, अगर गंदी आदत पड़ गई ना एआई की और चैट जीपीटी की, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड इन हिंदी, ठीक है? मुझे मिल नहीं रहा कोई इसका पर्यायवाची, मिल नहीं रहा हिंदी में, अदरवाइज मैं यूज करता है। इंग्लिश में करूंगा थोड़ा अब्यूजिव हो जाएगा ये, इसे चलो लेट बैक वो बोल देंगे। मुझे मिल नहीं रहा कोई वर्ड, ऑनेस्टली बोलूं। खत्म कहानी, खत्म, पकड़े जाते। बेवकूफ बना लोगे उसका जिसको समझ में नहीं आता, लेकिन जिसने समझ लिया बेवकूफ। अरे ये दिया तो है हमें, नहीं होगा। पॉइंट पढ़ के आते हैं जजेस, पढ़ के आते हैं। अगर आपको ये लग रहा है आप पढ़ के नहीं जा रहे हो, तो कुछ जजेस ऐसे जो इतना इस लेवल का पढ़ के आते हैं, आप फंस जाओगे। मत करो ये एआई को यूज। कैसे चलेगा आपका हिसाब किताब? उसमें से हम लोग पकड़ लेते, नहीं होगा। वो एआई चैट जीपीटी की हैबिट मत करो, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल रिक्वायरमेंट किस तरीके से हो गई है, ठीक है, जैसे हम स्कूल में की को यूज कर लेते थे, कुंजी जिसे हम बोलते हैं, गाइड को हम यूज कर लेते हैं, उसको कर लो। लेकिन उस पर इतनी डिपेंडेंट मत बन जाओ ना, जैसे हम सीनियर पर डिपेंडेंट हो जाते थे। ऐसे मत करो, फिर आप नहीं बन पाओगे, आप स्टैब्लिश लॉयर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप
हैबिट आपको इस तरीके से बनोगे, कल पता नहीं कुछ ऐसे लॉज आ जाए, बंद ही कर दिया जाए इन सबको, फिर क्या करोगे? कुछ ऐसी चीजें आ गई, कुछ भी आ गया, यू नेवर नो कि पता था यही आएगा, पता नहीं कल कुछ और क्या आ जाएगा। अब तो उसके अकॉर्डिंग चलने जाओगे ना, उसके ऊपर डिपेंड होगे। आज मैं वाईफाई के ऊपर डिपेंडेंट था, तो इसी तरीके से चीजें होती हैं। मत करो। ड्राफ्टिंग इतनी स्मार्ट हो जाएगी, इतनी स्मार्ट हो जाएगी, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिसके भी मैं जिस सीनियर से मैंने एक बार 6 मंथ्स का देखा था ड्राफ्टिंग, मैंने तो वो मुजफ्फरनगर से थे, वो खुद डीयू से पढ़े थे, नेशनल हॉस्पिटल से पढ़े थे, ही वाज पास आउट फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, और हम सबके सब और एक ड्राफ्ट लिखा रहे थे वहाँ पे, गोरखपुर में कॉन्वेंट स्कूल है, बाकी गर्ल थी मेरी बैच में, वन वॉज फ्रॉम IIT के ड्रॉप आउट थे, मैं था वहाँ पे, और क्या लिखना था हमें कि वो लड़की, मतलब एक मैट्रिमोनियल केस था, कंप्लेंट लिख रहे थे हम CW सेल को, लड़की जो है कमरा ढूंढ रही थी, एक एक के कमरे में जा रही थी, और हमें यही वर्ड नहीं मिला, जैसे शी वाज सीकिंग डोर टू डोर, ये सीकिंग वर्ड ही नहीं आ रहा था, उन्होंने ग्रैब कर लिया, उन्हें पता था। तो ये अगर आपके अंदर ये चीज है कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं, और हाँ, अब आप ध्यान से सुनिए, अब लेट्स से मान लो कल, क्योंकि जिस तरीके के केसेस हो रहे हैं, जिस तरीके से साइबर चल रहा है, हो सकता है कि कल आपको केसेस मिलेंगे तमिलनाडु के भी, आपको केसेस मिलेंगे ऐसे ऐसी जगह के जहाँ के, मतलब साउथ इंडिया के मिलेंगे, आपको इस जगह के मिलेंगे जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं हो पाएगा। तो उसके एक तरीका है, मानो आपने बोल दिया कि मेरा जो है, एक आप कोई ना कोई लोकल लॉयर वहाँ पे एंगेज करोगे, तो उसके ऑफिस को अपना ऑफिस बताओ ना, दैट यू हैव द ऑफिस देयर, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, उसको अपना दिल्ली का ऑफिस दो, एसोसिएट बनाओ, हर जगह खरीद नहीं पाओगे पूरे के पूरे सभी राज्यों में अपना ऑफिस, लेकिन इस तरीके से होगा कि कहीं आएगा तो आपके पास टिप्स में होना चाहिए, आपके पता करो आपके बैचमेट्स कहाँ का, हो सकता है कुछ लोग वापस अपने होम टाउन में चले जाए, वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मेरे कुछ लोग चेन्नई में कर रहे हैं, कुछ लोग बिहार में कर रहे हैं, कुछ लोग वापस देहरादून जा चुके हैं, कुछ लोग पंजाब में कर रहे हैं, तो आई हैव गुड लिंक्स। मैं मुंबई में अगर खोल पाया तो अटल बिहारी दुबे की वजह से खोल पाया। तो आपको इस तरीके से एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। ये तो चलो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मेरी स्ट्रैटेजी को अगर देखो कॉपी पेस्ट कर सकते हो तो करो, लेकिन उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में मेरे को ही कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। यदि आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हो तो नो डाउट आप टॉप में जाओ। अब आ जाते हैं मेन चीज में, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। ये मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड ना बाद में आप एक साथ ही भेजना, बिकॉज ऐसे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है? आई विल श्योरली डेफिनेटली आंसर। अब मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई ऑलवेज आस्क, जब भी मेरे पे इंटर्न्स आते हैं ना, जूनियर्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, मैं उनसे एक चीज पूछता हूँ, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो आउट ऑफ स्टेशन, किसी से आप जाओगे? तो देयर वाज अ गर्ल who said yes. Later on, she messaged me, no, sir, I can't. My parents said no. I said, okay, fine. Then again, I asked her, after 5 days, once you become a lawyer, will you go? I said, तो जाना पड़ेगा। क्यों? वो तो काम है। मैंने ओके, काम कैसे? Because you have started earning. Yes, sir. अभी तुझे मिलते हैं 1 लाख रुपए महीने के, तो जाओगे? Yes, sir, जाएंगे। खत्म। अब आपने क्या किया? आपने इस मोमेंट में अपॉर्चुनिटी मिस करी, और वहीं पे there was a girl called अपराजिता गांगुली, नाम से बता रहा हूं मैं आपको, the girl अपराजिता गांगुली, studying in Pune from Kolkata. She was here for 2 months. The girl never wanted to be in litigation. पता नहीं किसी तरीके से समा हुआ आई, दिल्ली में एक जगह वसुंधरा आया, वॉल्वो मिली, नहीं मिली, बस पकड़ के नैनीताल, मैटर अटेंड किया, सीनियर को असिस्ट किया, फाइल का मैटर हमारा था, शाम को सेम डे पटियाला हाउस। मैं आज की डेट में अगर मैं उसके बारे में बताऊं, शी इज इन 3rd ईयर भारतीय विद्यापीठ, कंप्लीट उसका होते ही ना, शी इज गोइंग टू बी अ बेस्टेस्ट लॉयर, बेस्टेस्ट लॉयर। क्योंकि क्या है, नो नहीं था इंटर्नशिप में, नो नहीं था, इवन लॉयर बनने का भी नो, केसेस को कभी नो नहीं करना है। मैं आज की डेट में भी जब रजिस्ट्रियां भी आती है ना, डिमार्केशन भी आता है, मैं अभी वो बात में समझाता हूँ तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, बट फिलहाल आपको नो नहीं बोलना। अब आप आ जाओ, अब जैसे आप सबकी छुट्टियां पड़ने वाली, आप सबकी छुट्टियां पड़ेगी, सबको जनवरी में इंटर्नशिप करनी है, जनवरी में। अरे जनवरी में इंटर्नशिप दिल्ली में नहीं मिल रही है तो अपने होम टाउन क्यों नहीं जाते हो? आपको सीखना है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे फाइल होता है, हाई कोर्ट में कैसे बात, आपके पड़ोसी ने झगड़ा कर दिया आपके साथ, आपको बोलते कितना स्क्वायर फीट की बाउंड्री है, स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं पता ही नहीं,
गज कितने होते हैं पता ही नहीं, नाली कितनी होती है पता ही नहीं, तो पता क्या है? पता ये है कि बेसिकली वी आर डूइंग इंटर्नशिप विद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वी आर डूइंग इंटर्नशिप इन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एंड दिस फोटोग्राफ विद कंसर्न जन, फोटोग्राफ विद कंसर्न सीनियर, गुड इमेज फलाना व्हाट्सएप, ये नहीं है। पड़ोस में आके वहां पे कल परसों एनक्रोचमेंट के मतलब आपका रोड के पास आपका घर हो, गवर्नमेंट एक मास्टर प्लान निकाल दे, स्मार्ट सिटी बना दे और रोड से आपका घर आ गया, गेट तोड़ दो, आपका कहाँ जाओगे पता ही नहीं। हाई कोर्ट जाएंगे, रेट फाइल करेंगे, वो हाई कोर्ट बोलेगा नीचे कहाँ, नीचे क्यों नहीं फाइल किया, नीचे कहाँ फाइल करना था पता ही नहीं, सीनियर डिवीजन कौन होता है पता ही नहीं, जूनियर डिवीजन क्या होता है पता नहीं, जुरिडिक्शन नहीं, प्रैक्टिकलिटी में डिफरेंट। उसके लिए लोकल लोग के साथ बैठ जाओ, उनके से नॉलेज लो, इतना लेके आ चलो, थोड़ा ऊपर चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, और अर्निंग साथ साथ चलती रहेगी, वो नहीं रुकती। वो आपका पैसा पॉकेट में आ जाएगा, पता नहीं करेगा, इसलिए इस चीज से मिथ हटा दो कि पैसा नहीं आएगा, आएगा, शुरू से ही आएगा, इतना ही आएगा। और एक चीज मैं बताता हूँ, मैं अपना गुरु मंत्र देता हूँ, फर्स्ट टाइम भी जब फीस कोट करो ना, उतनी ही कोट करना जितना तुम्हारा सीनियर करता है, लेकिन बोलना ऐसी जैसे मैं बता, नॉलेज के साथ ही, कम्युनिकेशन के साथ ही, ये दोनों का समझ, यहाँ से चलता रहेगा, यहाँ से आता रहेगा, यहाँ पे बढ़ता रहेगा, इस तरीके से। आई थिंक आई शुड हैव वाटर, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप गुड, यू कैन लाइक yeah, how to recognize a senior, a real senior? Okay, is this a question? Okay. Hello, sir. Good Yes, afternoon. Aman Mansuri, right? Aman, let me respond to this query of a student, right? Then I'll respond. Okay. How to recognize a good senior? Am I a good senior if I ask you this question right now? Now Umama Khan is doing thumbs up. Vishaka Jai is saying obviously yes. Fine, no. A good motivator, Chandni Singh. Anyone, fine. तो बताएगा कौन? ये तो मुझे, चलो, तो you should all give credit to ध्रुव प्रजापति या फिर अनुष्का लाल. Listen, right. I forgot to mention one thing. Sorry. आप सब जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं और डायरेक्ट हम सब भेज रहे हैं, खुश हो रहे हैं जो मैंने बोला मोटिवेशन, मुझे क्रेडिट नहीं जाता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने अपॉर्चुनिटी बनाई, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अनुष्का लाल, माय इंटर्न, हु नारसिम मोहन जी. इसको मैं कैसे, इनके वजह से जैसे ध्रुव, मुझे ये मेरा जो रील चला, मेरा इंस्टा चला, किसने चला? She was like basically कि आप सर, you speak well, you speak, there's an opportunity sir. मैंने ठीक है, if you know how to handle the social media, मैंने fine. अनुष्का लाल के वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ. ध्रुव प्रजापति, अगर मुझे पर्टिकुलर मुझे अगर अप्रोच किया गया है तो इट्स बिकॉज ऑफ हाँ, मुझे नहीं आता कैसे डाला जाता है. हाँ, मुझे बोलना आता है, नो डाउट, मुझे नॉलेज है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे. सो योर क्वेश्चन वो कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ गुड सीनियर. दिस इज हाउ आई रिकॉग्नाइज अ गुड इंटर्न. मैं बोलने में लगा था तो उसने क्या बोला, सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप रील क्यों नहीं बनाते ना? रील, हाँ सर मुझे हैंडल करना आता है, मैं हैंडल कर लूंगी. तो मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो तुम्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, तुम्हारा सीनियर किस तरीके से है. मैं बताता हूँ कैसे करना है. कोई भी अपना एक केस दे दो उनको, फ्री ऐसे ही बोलने के लिए, सर मुझे हेल्प चाहिए, देखना उसमें उसका डेडिकेशन पता चल जाएगा कितना है. और सेकंड, आपकी ब्रांडिंग कैसे होगी? वर्ड्स ऑफ माउथ से ही होगी ना. तो अब देखो तो सही कि जो आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं, जो बाकी फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, वो सब कहाँ हैं. तो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक फॉर अ गुड सीनियर. और आप, और ऑनेस्टली अगर आप गुड इंटर्न है ना, गुड जूनियर है, सीनियर आपको ऑटोमेटिकली गुड ही होगा. आप ही के अंदर अगर कुछ कमी है तो सीनियर कुछ नहीं होगा. बाकी अगर किस्मत में बहुत ही कुछ खराबी है तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता. बट आप अच्छे हो तो आपको मिल जाएगा. अच्छे को कोई जाना नहीं देगा ना, हर किसी को अच्छे की रिक्वायरमेंट है. मुझे जरूरत नहीं है क्या? मैं अकेले कर लूंगा क्या सब कुछ चीजें? मैं कर ही नहीं सकता. आई एम हैंडीकैप, बिना इंटर्न्स के, जूनियर्स के मैं कुछ कर ही नहीं सकता. कर लूंगा, फिर उतना ही कर पाऊंगा जितना कर सकता हूँ.
First thing. Yeah, sorry, Aman, you had a question. Yeah, please. Yeah, thank you for the giving me this opportunity. And so I want to ask you is that I'm a first year law student and I'm doing as well as I'm doing my internship in my district court. So what kind of habit and skill should I build in this kind of stage where I'm just No, no, no. beginner? Where are you doing internship? You're doing internship in district court, right? Yeah, Which district court? in my taluka. In your taluka, right? Okay, fine. So you have Yeah. an internship for a month. No, for a year. Internship for a It's not year. about I have a started. It's not just a mandatory or college Okay, thing great, fine. because I wanted to learn, so that I joined it. Okay, all right, all right, all right. So you do one thing wherever you're doing internship for a year. So if whoever is your senior is, whether he has a criminal practice, civil practice, matrimonial, or etc., 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 right? This is the time when you have to explore each and every parameters of law, every parameter. This is the because you are so blessed that you have a 1 year of internship. Honestly, you have no as such attendance criteria. So you work with the senior and try you work as a clerk first. You say, sir, I'm not an intern, I'm a clerk right now. No, no. I didn't say like that. And I Uh, am saying I this. said that I'm saying this. I'm saying that. I know you didn't say this. You said how I have to go with this with in this 1 year, right? This was your question, right? no. My question is, what kind of habit and skill do I need to build in this stage, like beginner stage? Okay, okay. Beginning stage. That is the first thing which you have to develop is the learning skills. First, you have to learn. You have to learn. First thing. Second thing, you have to sit in the court. Even when your senior doesn't have work, you have to sit in the court. Don't sit idle at his chamber. Sit in the court and try to understand. Try to understand the judge. Look at the hearings. Look at examination. Look at the cross examination. Take your white papers, pen, copy with you. Keep writing down the notes. What I did during my time when there was a matter of P. Chidambaram bail matter in Supreme Court, I was with the book. I noted down each and every argument of Abhishek Manu Singhvi or Kapil Sibal. This is how what you have to do. And then you have to realize, just go and stand in front of the mirror and say, can you speak like them? And if you can't, fine. Then see, people those who really speak well, are they getting relief? If not, then why? How the court functionally works, what judges are looking for, what individual judge is looking for. Sometimes it happens, you are going, you give me such a fascinating argument, not getting a relief. The counsel going, just pointing on a single specific thing, getting the relief for the client. So you have to work on this as well. You have to understand the judges. What, how many judges go at home and then on the very next day when they come, they raise certain queries. That means they are well versed with the file. You have to understand how many judges are there, how many lawyers are there, how many senior designated lawyers, those senior who are practicing in district court as well. What are the jurisdictions? How will you define the jurisdiction? Something has happened at some particular place, then how will you file a complaint? So these are a lot of things which you're going to learn. And honestly, you're doing in the taluka, this is the best thing. I really wish you all the best for your future, Aman. There was some other Thank you, question. sir. You're welcome. Yeah, next question was, yeah, sir. Yes, Supriya asked. Supriya, sir, really need to ask you one thing. Yeah, please ask Supriya. Can someone unmute Supriya? What's the question? Uh, Good afternoon, sir. Very good afternoon. So, sir, I just need to ask that this year only I've completed my BCom, like I've done my graduation.
And from this year as well, I've started my LLB. Okay. Alright. So this is my Okay. first year. So my Mhm. question is, I generally do not have, that kind of knowledge, or we can say, still not get any, certain idea about like how this system, like how this LLB field work. Like I have interest. I am learning. Mhm. It's been 1 or 2 months. Like the college has been started. So the thing is, ki, like for the internship and all, so we need to hunt it right now, or need to step back like for few months to study, or continue like by studying all those things like जो भी है, फिर after few months, और फिर उसके बाद मैं जाऊँ करूँ कि at this point only I need to um, search for the internship, or something like that. I mean, I'm not able to make you understand No, it's okay. So at I the understood. point. I understood one thing, that you are very confused. This is the thing which I have understood. Okay. Okay. No worry. No worry. It's okay. Perfect. Fine. So you have enrolled in law college, right? Yeah, yeah, Okay. And you are in the first year, correct? yes. Go ahead with the internship. Now, how you have to choose an internship? First, make a table. Tell how many laws are there. Law is very vast. First month, few months, do under criminal, at least for 6 months, because you won't understand. Because it takes time. 1 month you won't get that much of ample exposure in 1 month. Even 6 months is quite less. But join someone. Anyone. But the moment you join someone, if you develop the interest, then it's fine. Otherwise, if you don't, then don't be stuck there. Hunting for others, asking for others. This is the time you have to do lots of piloting. But internship is very mandatory, it's utmost required for you. And after 3 years, then you have to decide when you have developed your interest, and there you're going to do it. Okay? Okay, okay, sir. Got it. Thank you I so hope much. you're welcome. Yeah, just Chandni Singh, very important query, sir. Yes, please ask Chandni. You can write your message here, like I can answer you there. Hello, Yes. sir. Can I ask some advice? Legal advice? Yes, actually, I put the message because we want to understand that if we can approach the court behalf of any enrollment advocate in Uh-huh. session court or district court, Uh-huh. because we are a second year student. We are doing the internship under that lawyer, but Hmm. can we approach the court? No, not like this. Not like this. No. That is what I told you when I said, no, you people have to be opportunists. Simultaneously, you people have to be very vigilant. Uh, Did you do one thing today? yes, sir. Once session is over, go and check the website of National Wheel Tribunal. Go and check Okay. the website of every high court, especially your high court. Oh, Everywhere there is the internship program. oh, Fill the form. okay. Wait for an opportunity. This is how you can't go directly. Judges there, the trial is going. You say, sir, मैं आ गया. Internship चाहिए. Got it? Understood. Right? And now next question. Thank you, sir. No worry. Thank you. You're welcome. Jai Hind sir. I'm the first BLLB looking के लोगों के बीच में बोलने से बहुत डर लगता है. निशु, fine. लोगों के बीच में बोलने से बहुत डर लगता है. Correct? क्या करोगे तुम्हारे घर में आके अगर पापा को थप्पड़ मार दिया किसी ने? तब बोलोगे? किसी ने तुम्हें अब्यूज कर दिया तब बोलोगे? और अगर डर लगता है ना तो फिर कुछ नहीं करता. और डर किस चीज का? चोरी कर रही है, डकैती कर रही है. और बोलना क्या है? फैक्ट बोलना है. अगर एक लॉयर को डर लगता है तो एक ही चीज से उसको डर लगना चाहिए. उसको बेसिकली अपने क्लाइंट को मिसलीड करने से डर लगना चाहिए. सेकंड, क्लाइंट को झूठ बोलने से डर लगना चाहिए. और उसको फेक एश्योरेंस देने से डर लगना चाहिए. सर सॉरी टू इंटरप्ट, आपका वॉइस थोड़ा लो हो गया. Again, all right. Okay. Yeah. Thank you. Right. And so I hope Nishu try to understand. And अगर नहीं तभी भी नहीं होता है तो एक काम करो.
ज्वाइन सम एनजीओ, अभी से जस्ट गो एंड ज्वाइन सम एनजीओ। आपने बोला लोगों के बीच में बोलने से बहुत डर लगता है, आपका वो हाल है कि आपको हम फेंक देंगे उठा के स्विमिंग पूल, आपको तैरना नहीं आता, आपको आ जाएगा। Do one thing, just go and join some NGO, but any like work for the poor and the downtrodden section of the society. आप स्पेशल डिसेबल बच्चों के लिए वर्क करो, उनके लिए करो, ठीक है। जो विमेन जो बेसिकली सब्जुगेट है ब्रूटैलिटी का, क्रुएल्टी का, उनको ज्वाइन करो एंड गो एंड लाइक फाइट फॉर देम। यू वहाँ पे क्या हो जाएगा ना, वहाँ पे डर निकल जाएगा। वॉलंटियर करो अपने आप, डू वॉलंटियर, निकल जाए। गॉट इट? Ananya Paliwal, if a person don't have a regional language, so should we leave the state or learn that language for arguing? Ananya, this question is like regional language. If a person don't know a regional language, then you better go to the High Court, no? For example, you want to practice in Mumbai and you are in Thane or Amravati or somewhere, then you better go there. You practice in the High Court. कहाँ चेंज करोगे? बिकॉज ऊपर हाई कोर्ट में जो जजेस है उनको भी ट्रांसलेट करके ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉर एग्जांपल अगर मैं चला जाता हूँ कहीं पे भी साउथ इंडिया और महाराष्ट्र जाता हूँ कहीं, आई डोंट नो द लैंग्वेज बट आई हैव टू बी देयर ऑन व्हेन आई एम गोइंग टू डू प्रैक्टिस। अगर मैं उड़ीसा चला गया, मुझे प्रैक्टिस कहाँ करनी पड़ती है? आई हैव टू प्रैक्टिस इन कटक हाई कोर्ट बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल विल बी इन इंग्लिश, आर्गुमेंट विल बी इन इंग्लिश, और रीजनल लैंग्वेज का तो ट्रांसलेशन ही होता है। इवन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स व्हेन वी फाइट एनी केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, वी हैव टू गेट इट ट्रांसलेट इन इंग्लिश। दिस इज हाउ इट इज। सर जस्ट अ सेकंड, सर आपके माइक से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज स्टार्ट हुआ है। मेरे नहीं है, देयर इज नो नॉइज एज सच। इज इट फाइन नाउ? टेल मी। या बेटर या। Tanushri, this is Tanushri, your question is it fine? आवाज साफ है? सर कुछ ऐसा बता सकते हो आप कि आफ्टर कॉलेज लिटिगेशन करते हुए भी अच्छी अर्निंग हो, स्टेबल और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकता हूँ? ये सब तो मैंने आपको बता दिया। आई गेस कि आप लिटिगेशन करते हुए अर्निंग कैसे कर सकते हो तो मैंने बता दिया, और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में कर सकते वो भी मैंने बता दिया कि सोना नहीं जैसे लाइक तो यही आंसर है मेरे पास। हाउ टू रिकॉग्नाइज द रियल सीनियर गुड मोटिवेटर। Toyash Mitra, yes. Neither AI, nothing. Nor can give this. Nor can give the knowledge. Asfa Sheikh, sir, is a long-term internship better than... Yes, Asfa, long-term internship is better, yes. 1 month में, for example, this is a very, very, very relevant question and I really would like to answer. अगर long-term internship better होगा, for example, आपने divorce petition file कर आपकी, आप फाइलिंग ही सीखते रह जाओगे, और डिवोर्स में इट विल टेक 45 डेज अगर हम वेवर की एप्लीकेशन, और 6 मंथ, तो 6 मंथ में कम से कम आप डिवोर्स पिटीशन म्यूचुअल ग्राउंड के बेसिस सीखते रह जाओगे। 1 मंथ में आपने सिर्फ पिटीशन सीखा एंड हाफ नॉलेज वेरी दिन। तो यस, लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप बेटर। What if you join a senior and you are just doing the jobs of taking Xerox and not even you are allowed to do code with your senior? The senior will not give you an opportunity. No, every senior can't give you an opportunity. Opportunity लेनी पड़ती है. Sir, can you hear me, sir? Yeah, yes, Channi. Sir, my name is Manish, sir. I'm just Manish. using the ID of my wife, sir. Okay. Sir, I have completed 19 years of service in Indian Air Force, sir. All my right. age is 36. But Okay. now I am resigning from my job, sir, due to my domestic requirement. Okay. तो सर क्या ऐसा नियम या फिर यहाँ होता है क्या, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से या फिर कहीं से जैसे आप जॉब में रहते हुए ये नहीं LLB नहीं कर सकते, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड माय NOC फ्रॉम इंडियन एयर फोर्स, सर। नहीं, आर यू रिटायर्ड राइट नाउ? आर यू पेंशनर और व्हाट? नो आई एम 19, मतलब 1 साल और जॉब बचा हुआ है, सर। आई एम इन सर्विस, सर। हाँ, तो पढ़ाई कर सकते हो ना, बट यू कांट गेट एनरोल, यू कांट डू प्रैक्टिस। हाँ, तो 1 ईयर लिफ्ट बचा हुआ है, सर। मैं LLB फाइनल हो रहा है, सर, इस साल। हाँ, ठीक है, फाइनल करो आप। फाइनल जब आपका हो जाए, वंस यू आर रिटायर्ड, ठीक है, देन यू गेट योरसेल्फ एनरोल एंड देन आपके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप तो AFT में भी कर सकते हो। जी, दैट वाज द रीजन। मैं यहाँ से रिजाइन करके सर AFT में कंटिन्यू कर सकता हूँ इस चीज को, सर। हाँ, नहीं, रिजाइन करना चाहते हैं आप अभी से? हाँ, ऑलरेडी मैं छोड़ रहा हूँ, सर। इनिशियल एंगेजमेंट हमारा 20 साल का होता है, तो मैं 20 साल की छोड़ रहा हूँ, सर। ठीक है। तो ऐसा कुछ नियम तो नहीं है ना कि जॉब में रहते हुए आप पढ़ाई नहीं कर सकते? जॉब में क्या बात कर रहे हो? तो आपको पता है जॉब में लेके आपको एजुकेशन लीव मिलती है, जितने
आप सब लोग तो लेते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ाई तो आप कर सकते हो, एनरोलमेंट नहीं करा सकते आप ना, एनरोलमेंट भी करा तो दो लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे मेरे पास सिर्फ 6 महीना बचा है, उसके बाद मैं जब इनरोल होता हूँ सर गुजरात में, बिकॉज़ मेरा राइट नाउ पोस्टिंग अहमदाबाद में है, तो मैं यहाँ इनरोल करके ऑल इंडिया प्रैक्टिस कर सकता हूँ ना? हाँ, और जब आपका बाहर का, जब आप एग्जाम क्रैक कर दोगे ना, एनरोलमेंट करा लोगे आप, जी, जी। एनरोलमेंट कराने के बाद जब आप ऑल इंडिया बार एग्जाम का क्रैक करोगे तभी तो आपको राइट टू प्रैक्टिस मिलेगा, तभी तो प्रैक्टिस कर जी, पाओगे। जी। एनरोलमेंट कराने के बाद क्या ओके। करोगे, साइन कर पाओगे ना, सॉलिसिट कर पाओगे, साइन कर जी, पाओगे, लेकिन एज अ हुँ, हुँ। काउंसिल अपीयर कब करोगे, जब बार पीसीआई का एग्जाम क्रैक करोगे ना, ऑल जी, जी, इंडिया बार। आपकी हाँ, उसका जब पूरा कंप्लीट होता है 20 साल, तो मैं चाहता हूँ अपने होम टाउन में स्टार्ट करना सर। हाँ, ऑल इंडिया बार एग्जाम जब आप क्रैक करोगे तब आप प्रैक्टिस करोगे, ओके। थैंक यू सर। Dhruv, do I need to respond to some other queries as well, like Sir, if it's possible that then maybe we can take more 5 minutes for the questions. so Like we have some questions in the chat already, so maybe we can just Yeah, answer them. Yeah, I'll respond to Ishita, Abhishek, and one Inder Singh. Yeah, sure. Ishita, I wanted to know how did you figure out that you wanted to go with litigation? I wanted to know how did you figure out that you wanted to go with litigation? I just got that. You want to know about me or what? Like the question is quite confusing. I just So I just wanted to know that we have two options, litigation and corporate. So how did you figure out that you wanted to go with litigation instead of corporate? Okay, about a corporate. So what happened? Like I got the internship with the Chief Information Commissioner, Bikaji Kama Place, Delhi. So I was there for a day, and there was a girl like she asked me to read. I was there, and I said good morning. She was fine. She said, okay, read this Bail Act. I had a Bail Act, and I started reading Bail Act. She said, okay, done. So you tell me this section. I read that section. She asked me another one, and I got fumbled. She told that Bail Act and like just go and read it. I got very annoyed, very annoyed, very annoyed. Honestly, first thing which has happened with me. I said, fine, my goodness, what is this? I have completed my law from Campus Law Center, and today I want to become a lawyer. I am here to pursue an internship, and my God, this is the treatment which I'll get from seniors. Okay, first thing. Second thing, what I did is, again, I went to some good firm, very, 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 very renowned firm. I was there, and there was a very nice guy. Like, that was through some reference. He was also my senior in Hansraj when I was doing my undergrad. He said, okay, you come there and I'll help you to join internship. And I was there for a month. I was there. And he asked me to read the file, and I was doing, because initially, because there was a matter listed in the morning, 10:30, they were supposed to leave for High Court. I was reading the file, and suddenly there was a man, very, very handsome man, like he stepped in, he was like, so you're intern, right? Okay, what are you reading? I'm reading the file. I don't know why he asked me that question. Today I'm blessed that she did that to me and he did this to me. Otherwise, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, God knows. Citizen Paris तो पता नहीं मनाली भी जाता नहीं जाता. Anyway, so that man, I don't know his name. He was like, okay, you read this. He asked me something about shares. So if it's a joint venture, Falana XYZ. I don't know. My God, you don't know anything. From where have you studied? I studied from CLC, Campus Law Center. Oh, CLC, fine. Okay, but you don't know this. I am a 24-year-old boy. You're asking me this question. And same thing, when I ask my intern this thing, they say we don't know. Mela, sir, don't know. But Mela, at least you know this. I don't know even, I didn't know even this much. So you have to develop that confidence among your interns and juniors. That was the first reason when I decided I will not work under anyone. That was the main reason. And both of them were actually inclined to corporate. That firm was also with the corporate. And somehow the first incident that was on the corporate. मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता. कुछ तो आपके अंदर का एटीट्यूड इस तरीके का होता है, and some कुछ इंसिडेंट होते हैं. But I'm blessed, no, that thing has happened with me, and today see. Otherwise मैं कहाँ बुलाते, मैं आप लोग सुन ही नहीं पाते मुझे, मैं आ ही नहीं पाता यहाँ. I'm blessed. This is how. Second question, your Ishita, is I just got done with my third semester of BLLB and I'm confused with what to go with. You're done with third semester. तो बहुत time है. You're doing 5 years of law.
Yes, sir. Fine, no, then go and do internship in corporate. And go and do So the internship. issue is that I am studying in UPS Dehradun, and we have this whole attendance criteria. Come on. Don't tell me about Dehradun, UPS Dehradun, because even recently Graphic Era invited me being a judge in a moot court competition. Take care. You are there, right? Yes, sir. Dehradun, no? No, sir. I am living in Delhi. My dad's in Delhi, posted here, and I'm studying in Dehradun. That's what I'm saying. You're pursuing your law in Dehradun, no? Yes. UPS Dehradun. So, okay, so do one thing. I'll speak with Dhruv. All right, and you start doing internship in the Dehradun district court. Now look, can you see? Like, have you been to Dehradun district court? It's just like now Rouse Avenue of Delhi. Yes, sir. But actually, our classes go on till 5. And then there is I live inside hostel, so I get restricted because of that also. Is it allowed to leave UPA like after 5 p.m.? Can you leave the We premises? can leave, but we have to be back by 7:30, 8 o'clock max. And it takes 1 hour to travel to the main city itself. Man, that I know about Dehradun. So do one thing. What you can do is like you can do your internship in Selakui. It's nearby Selakui, right? I am not aware about that, so Is it nearby Siddhubala jail? I don't know, sir. Prem Nagar Indian Military Academy, Panditwadi, there only, Yes, right? yes, it's 20 minutes from my I email. know. So got it, right? So see, do one thing. Between 5 to 7 p.m. Like if it's not allowed, then what you can do is Sunday. What is the status of Saturday and Sunday? So that depends. Sometimes we get classes, and sometimes it's off. Can you skip the classes because so that you can also manage your attendance? No, sir. The attendance criteria is very strict over there. Can you even get 10% of your time of doing internship during your college days? Yes, no, including. Yes, sir. I am trying to get online internships for now. Please don't do this online. This word really annoys me. No, online word. You are in Dehradun. You are in the capital of Uttarakhand, So, right? yes, sir. You are from Delhi, the capital of India, and you want to pursue your online internship. ONGC head office is there, Survey of India is there, FRI is there, and you want to do online internship. No, so for Delhi, I am trying to get AFT this time. That you will get it, armed forces, because you are even right now also you are in the hub of Dehradun, so you will surely get it. And do one thing, even if you get do one thing, just get your 10% there, okay, and try to do internship as well in Dehradun. I'm telling you. Okay, sir. Because have you ever been to Nainital High Court? No, sir. Be there. It's like a castle. You will love it. You will forget Delhi. So do one thing and okay. So this is how you have to get your time for yourself. You have to manage. You have to manage this. Yes, sir. Fine. Ishita is there. Abhishek, I am confused with third year students. Some people advise after the complete LLB, after join the internship. Some people advise running education, join the internship. You advise the right time, join the internship. According to me, internship after completion of law, will you do internship or will you be a lawyer? Good evening, sir. Oh, Abhishek, you are here, right? I write your question, Abhishek. सर मेरा ये कहना है कि सर मैं जिसमें थर्ड ईयर सेमेस्टर का मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ मैं, जो कि सर मैं जब कचहरी जाता हूँ तो वहाँ पे कई तरीके के हमारे पास डाउट्स रहते हैं, कभी डाइवर्ट करते हैं कई तरह के जो भी लोग हैं कि अभी नहीं करना चाहिए, अभी एजुकेशन कंप्लीट कर लीजिए तो आप इंटर्नशिप कीजिए। तो सर और मूट कोर्ट हमारा जिसमें कॉलेज में नहीं होता है तो हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें बोलने के लिए? नहीं, मूट कोर्ट तो मैंने भी आज तक एक भी मूट कोर्ट में पार्ट नहीं लिया था। देखो कुछ चीजें तो इनबिल्ट होती है, जैसे कुछ लोग हैंडसम होके पैदा होते हैं, सुंदर होके पैदा होते हैं, लंबी हाइट के साथ पैदा होते हैं, ठीक है ना? तो कुछ लोग की जो कम्युनिकेशन होती है वो शुरू से ही हो, और कुछ अगर किसी को बिल्डअप करनी है तो मूट कोर्ट आपको बिल्डअप नहीं करना। बिल्डअप आपको अगर करना ही है तो आपको अभी से जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप कहाँ पे हैं, मतलब कौन से मतलब यूपी से बात कर रहे हैं, हरियाणा कहाँ पे? सर बरेली यूपी से। बरेली यूपी से कर रहे हो ना? बरेली तो हब है यार। बरेली में तो जिस लेवल का क्रिमिनल केसेस आ रहे हैं वो तो सबसे बेस्ट तरीका है आपके लिए सीखने का। 10 बजे तो जजेस बैठते हैं, 10:30 बजे वहाँ पे। जी ठीक है, 10:30 में आप आराम से, और वहाँ पे बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे लॉयर्स हैं वहाँ पे। अगर और आपको अगर सीखना ही है तो मैं आपको पर्सनली बोलता हूँ, यू जस्ट गो एंड ज्वाइन एनी पब्लिक प्रोसिक्यूटर देयर। आपको इंडिविजुअल काउंसिल से ज्यादा है, आप पीपी को भी ज्वाइन करिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर में इंटर्नशिप्स कीजिए, आपको पता चल जाएगा एक्चुअली। आप लोग सिर्फ ये आप लोग इंटर्नशिप को थोड़ा वास्ट कीजिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर में भी कीजिए, एनजीओस के अंडर में भी कीजिए आप,
ठीक है ना, आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी कीजिए, सिर्फ ऐसे मत देखिए कि मुझे किसी लॉयर का चैम्बर करना है, आप पीपी के अंदर में जरूर कीजिए। मैं आपको अभिषेक बता रहा हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर में इंटर्नशिप कीजिए, पीपी साहब से मिलिए, पीपी साहब के चैम्बर में जाइए, अप्लाई कीजिए, मुझे आपके अंडर में सीखना है, and he will be also be very happy that someone has come and who really want to do internship under me. This was something new for them also. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay, Dhruv. Yes, sir. I guess we are left with one last question from Inder Singh. And I guess then we can end the session. Okay, Indra Singh. Inder Singh. So he has a question. Should I read the question? Yeah, please. Yeah, so the question is, good evening, sir. My name is Inder Singh, practicing in the District and Session Court, the High Court in Assam. I am recently handling a trial which involves a kidnapping of a minor under 87 BNS, Section 87 BNS, plus no POSCO integration. Do you think I should add elopement jurisprudence in the matter plus procedural lapses? Your commentary would really help. I have connectivity issues here. Just sending the messages. Love the session as well. Okay. So, Inder, you, if you're like individually, if you're handling this kidnapping of minor under Section 87 BNS and no POSCO integration, yeah, you can add. See, I don't know like how much years of practice you have, but can you please like tell me like how many years you have? Accordingly, I'll give you an advice. Inder Singh. Dhruv, this is something this will take me at least half an hour to Yeah. this question. Right? So, All right, let it. better just share the email ID or like Yeah, sure. I will share. So Yeah, sure. I'll share the email ID to Anushka then. yeah. All right, so I guess we can then conclude with the session. Yeah, sure. Thank you everyone for joining on Sunday, taking out your time for taking this session. And honestly, sir, super grateful to you as well for taking this Thank you, session. All the students had a really great informative time and a motivational session as well. So thanks a lot, sir, for taking this session. Thank you everyone for joining. Thank you. So if you have any ending notes, you can give us one. Thank you so much. Bye bye. All right, Dhruv. So you want ending note something? You want something? No, we are done. You have Okay. give. Bye bye. Yeah. Take care. All the best. Yes. Thanks.